Ladies and gentlemen, welcome to the official YouTube channel of SBA, that is Shribala Automobiles, which is an authorized multi-brand car workshop which works on every single car from entry level to premium cars. बट आज की वीडियो के अंदर हम आपके लिए आए हैं एक बहुत स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज हमारे पास SBA की वर्कशॉप में आ रखी है एक परफॉर्मेंस कार. इट इज़ एक्चुअली अ ट्यून्ड कार, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर, इज़ an Abarth Punto. Now on a good day this car can produce around about 200 horsepower, but on average you can expect around 180 to 190 horsepower from a hot hatch like that one. Now इस कार के अंदर जो ये काम काज करवाने आई है कार हमारे पास, वो है ब्रेक पैड्स चेंज होने के. तो हम ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स इंस्टॉल कर रहे हैं कार के अंदर, एंड वी आर गेटिंग द होल ब्रेक फ्लूइड फ्लश, दैट इज चेंजिंग द ब्रेक फ्लूइड ऑफ द कार एज वेल. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग. इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स आती हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल वीडियो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन SBA के लिए फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल और जिनको SBA के बारे में पता नहीं है. सो लाइक आई सेड इन द स्टार्ट एज वेल, SBA एक मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है विच इज़ एक्चुअली एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर Chevrolet एज वेल. सो नॉट ओनली ऑथराइज बट एक्चुअली वो द इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर फॉर Chevrolet. लेकिन Chevrolet के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे अदर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है, फ्रॉम एंट्री लेवल टू वेरी प्रीमियम ब्रांड्स एज वेल. सो नो मैटर कौन सी कार आपके पास है, SBA उस कार का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं. एंड वी हैव collaborations with international brands such as Liqui-Moly, as you can see. We have Worth products over here. We have collaborations with Standox and many international brands just like that. तो नो मैटर आपको कोई भी काम अपने कार के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें. डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं विद अ लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड हेयर एट SBA. तो कोई भी डाउट आता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या अगर हमें कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं. Now the first step would obviously be to jack the car up, and that is something that we'll do with the lift. Now because the car has been lowered and because there are additional side skirts in this car as well, so it does make a few problems. So that is why the lift first has to be adjusted, what the guy is doing right now. And once the lift has been adjusted, you can see how low to the ground it actually is. Once all of that has been done, the car will then be lifted up. But while that is happening, I just want you guys to appreciate how beautiful a job has been done on this car. The alloy wheels, the Project D Lenzos look really nice. The whole wrap on the car, which actually has been done by Rapidly Wraps, once again one thing that is done in collaboration with SBA. Rapidly Wraps has done amazing work here at SBA. You can have any kind of car wrapped, anything to even Lamborghinis and Aston Martins, which is something that they actually have done, and you can look at their work in the description of this video. I will link their Instagram account down there. But so इस कार के अंदर हमारे पास रैप भी किया गया है. The tail lamps and the headlamps have been tinted, once again giving this car a kind of a all black look and looks absolutely menacing. So अब जबकि कार जो है वो जैकअप हो चुकी है, ऑल फोर एलॉय व्हील्स ऑफ द कार आर नाउ रिमूव. अब जो है इस कार के ब्रेक पैड्स रिमूव हो रहे हैं टू असेस देयर कंडीशन. सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन इससे जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इस कार के अंदर ब्रेक पैड्स लगने कौन से हैं. एंड दोज आर फ्रॉम Brembo, you can see. So these are the front brake pads and these are the brake pads for the rear. तो आप देख सकते हैं these are official Brembo brake pads. So अब इसके जो ब्रेक पैड्स हैं ना, ये एक्चुअली ओनर अपने साथ ही लेके आए थे. बट ऑब्वियसली इफ़ दैट इज़ नॉट द केस विद यू, SBA पर भी आपको Brembo ऑफिशियल के ब्रेक पैड्स या किसी भी कंपनी के ब्रेक पैड्स अगर आप ऑन ऑर्डर मंगाना चाहते हैं तो SBA उस चीज़ का भी टेक केयर करते हैं. सो दीज आर फॉर द रियर टायर. सो इस केस में ओनर अपने साथ लेके आए थे, विच इज़ टोटली फाइन, एंड दैट इज़ समथिंग दैट SBA सपोर्ट्स एज वेल. सो ये हैं रियर के ब्रेक पैड्स, एंड इफ यू सी ऑन टू द अदर पैकेज दैट वी हैव ओवर हियर, ये एक्चुअली है फ्रंट ब्रेक पैड्स फॉर बोथ द फ्रंट लेफ्ट एंड राइट टायर्स. एंड अगर आप ये देख रहे हो कि ये एक्चुअली क्या होता है,
दिस इज़ द वेयर इंडिकेटर। अब इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने ब्रेक पैड्स जो हैं वो यूज़ कर रखे हैं कार के अंदर, एंड ये ब्रेक पैड्स आपने लगा रखे हैं, तो जैसे जैसे ये ख़त्म होते रहेंगे ये वायर के उस वैसे वैसे ही पास आते रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक पैड्स ख़त्म होते रहते हैं तो वो पतले होते रहते हैं, एंड जैसे जैसे वो पतले होंगे वो वायर के बहुत पास आ जाएंगे, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वायर को टच करने लग जाएंगे, एंड जब आप उस टाइम पे ब्रेक मारेंगे तो ये जो वायर है ये थोड़ी सी घिस जाती है, यानी कि जल जाती है। तो जब वो चीज़ जलती है तो उस टाइम पे आपकी गाड़ी के आगे जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर आपको वार्निंग आ जाती है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, इनको जाकर जल्दी रिप्लेस कराएं। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो। दीज आर एक्चुअली नोन एज द ब्रेक पैड वेयर इंडिकेटर्स। जैसी वो वार्निंग आपके पास आती है, दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू गेट योर ब्रेक पैड्स रिमूव एंड चेंज्ड। सो जब तक मैं आपको वो समझा रहा था, यहाँ पर इस कार की डिस्क जो है वो उतर चुकी है, एंड वी हैव लाइक ऑलमोस्ट द होल ब्रेकिंग सिस्टम अपार्ट एट दिस पॉइंट, एंड यू कैन सी जो इस कार के प्रीवियस ब्रेक पैड्स थे वो ये थे। अब देखने पे आपको लग सकता है कि ये जो ब्रेक पैड्स हैं दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ न्यू, ज़्यादा यूज़ नहीं हुए क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ लाइफ इन देम। लेकिन ये जो ब्रेक पैड्स हैं दिस इज समथिंग कॉल्ड कुक। होता क्या है कि क्योंकि जब ये कार्स ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड व्हेन यू पुश दीज कार्स हार्ड, तब आप इसको ट्रैक डे वगैरह पे जैसे ब्रेक्स बहुत गर्म हो जाती हैं, एंड व्हेन दीज मेटल कंपाउंड्स जब ये बहुत गर्म हो जाते हैं तो यू कॉल दीज ब्रेक पैड्स एज कुक। यानी कि जब भी आप इन ब्रेक्स को अब यूज़ करोगे कार के अंदर, सो दे विल हार्म द रोटर ऑफ योर कार एंड दे विल ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो एक तरह से देखने में आपको लग सकता है कि ये ब्रेक पैड्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं अभी भी, एंड जो कि है भी, लेकिन दीज ब्रेक पैड्स आर ऑफ नो यूज़ अब, एंड सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग न्यू ब्रेक पैड्स फॉर द Abarth Punto। तो अब जबकि सेकेंड टायर के भी हमने ब्रेक पैड रिमूव किया, तो आप देख सकते हैं इट इज़ द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। रेडिशनेस आ चुकी है बिकॉज ऑफ दैट कुक्ड ब्रेक पैड। सेम सिचुएशन ओवर हियर इज वेल। लाइफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्रेकिंग एंड क्योंकि ब्रेक पैड्स हीट बहुत जल्दी होते हैं इन द एक्सेसिव ब्रेकिंग, दिस ब्रेक पैड्स आर नाउ टोस्ट। सो अब जो है सारे ब्रेक पैड्स रिमूव हो चुके हैं। ऑल द 4 रोटर्स हैव नाउ बीन रिमूव्ड, एंड रोटर्स को अब उधर लेके जा रहे हैं बिकॉज द रोटर्स नीड टू बी रिफेस्ड, विच मीन्स दैट उनकी जो स्मूथनिंग है वो फिर से होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस रोटर ओवर हेयर, अभी जो है थोड़े से मतलब इसका जो सर्फेस है ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, जो कि इज़ नॉट आइडियल फॉर ड्राइविंग योर कार। तो इसीलिए ये जो रोटर्स हैं इनकी अब स्मूथनिंग होगी। सो दैट्स कॉल्ड रिफेजिंग, एंड वंस द रोटर्स आर देन कंप्लीट, उसके बाद हम वापस कार को विद द न्यू ब्रेक पैड्स हम इंस्टॉल कर देंगे। सो अब जबकि हमारे पास चारों रोटर्स यहाँ पे आ चुके हैं, जस्ट वन थिंग दैट इज़ अ स्मॉल लिटिल फैक्ट, एंड बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते होते, वो ये होता है कि रोटर्स भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार के अंदर ही हमारे पास 2 टाइप के रोटर्स हैं। ऑब्वियसली एक तो साइज़ का डिफरेंस तो आता ही आता है, फ्रंट रोटर्स ऑब्वियसली पीछे वाले रोटर्स से बड़े होंगे, बट इनके अंदर भी अगर आप देखें जो फ्रंट रोटर्स हैं उनके अंदर एक ड्यूल डिस्क डिज़ाइन दिया गया है, जिसके मतलब ये है कि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में स्पेस है। नाउ दीज आर नोन एज वेंटेड रोटर्स। वेंटेड रोटर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि रोटर्स विद यूज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, एंड इन वेंट्स के बीच में होने की वजह से वो कूल डाउन जल्दी होता है। जो पीछे वाले रोटर्स आप देख सकते हैं इट हैज़ अ सिंगल डिस्क डिज़ाइन, दीज आर नोन एज सॉलिड रोटर्स। सॉलिड रोटर्स के बीच में कोई भी वेंट्स नहीं होते, तो इनको और इनको अगर आप देखें कंपैरिजन में कूल डाउन होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इससे, लेकिन 70% ऑफ द ब्रेकिंग जो होती है वो कार की यूजुअली फ्रंट रोटर्स ही करते हैं, इसीलिए इनके अंदर वेंट्स होना ज़रूरी है, बिकॉज these are the rotors which actually get more hotter than the rear ones. But these are not the only 2 types of rotors we get. We get slotted rotors, vented rotors, drilled rotors. These are all kind of different rotors that you get in a car. For a performance car, obviously vented rotors get the work done, but rally sport cars जो होती हैं, जो प्रॉपर ट्रैक वेपन कार्स होती हैं, उनके अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रोटर्स भी देखने को मिलते हैं। आपने कई रोटर्स देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इन मस्टैंग के अंदर हमारे पास रोटर्स आते हैं जिनके बीच में लाइंस जा रही होती हैं, दोज आर नोन एज स्लॉटेड रोटर्स। उनके अंदर वो लाइंस होने की वजह से दे प्रोवाइड इवन बेटर कूलिंग। एंड अगर आप स्पोर्ट्स कार्स जैसे कि सुपर कार्स वगैरह हो गई, उनके अंदर आप देखेंगे उनके अंदर रोटर्स के बीच में होल्स होते हैं, दोज आर नोन एज ड्रिल्ड रोटर्स। ड्रिल्ड रोटर्स कूलिंग के लिए और भी ज़्यादा बेटर होते हैं। So like these are the different type of rotors that you get in a car. That's just one small little fact. Now while the rotors are being phased, इसके अंदर अब जो हो रहा है वो कैलिपर्स के साथ काम हो रहा है, and that is actually piston को बैक करना।
अब होता क्या है, जो हमारा पिस्टन होता है ब्रेक कैलिपर्स का, वो ब्रेक पैच के साथ बिल्कुल टच होता है, क्योंकि जस्ट इन केस व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, वो पिस्टन ब्रेक ऑयल की वजह से एक स्क्वीज़ होता है एंड वो रोटर स्क्वीज़ होने की वजह से आपकी कार स्लो डाउन होती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो अभी ब्रेक पैड है वो ही रिमूव हो चुका है, इसलिए पिस्टन बिल्कुल आगे आ चुका है। लेकिन वो पिस्टन हमें बिल्कुल आगे नहीं चाहिए। वी वांट टू पुश दैट पिस्टन बैक, ताकि हम वापस से नए ब्रेक पैड जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकें एंड वो कार के अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो इसको अभी लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पिस्टन बैक करना। You can see how much a difference this rephasing makes. अभी लोअर वाला हाफ आप देख सकते हैं, अभी वो रिफेस होना है एंड जो ऊपर वाला हाफ है वो रिफेस हो चुका है। यू कैन सी हाउ मच क्लीनर दैट इज। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है, आई विल शो यू द होल थिंग हाउ इट एक्चुअली इज। जस्ट लेट इट कंप्लीट। तो अब जो है एक साइड जो है रोटर का कंप्लीट हो चुका है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेकेंड साइड नाउ। लेकिन एक चीज़ जो आप ज़रूर देख सकते हो वो ये है कि हाउ मच ऑफ द मेटल has actually scraped off the rotor. ये सिर्फ एक साइड है रोटर की जो आप देख सकते हैं, all this metal scrap. This is only one side. अभी दूसरी साइड पूरी बची है होने को। And then we have 3 more rotors after that both sides. Right, so एक टायर जो है वो पूरी तरह रिफेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। This is actually looking brand new. तो ये एक्चुअली अब है जबकि रिफेस हो चुका है एंड वो पुराना है। So you can even actually look at just the color difference between the two. उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एजेस हैं, बम्प्स हैं, जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स प्रॉपर काम नहीं कर सकते। बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली एज इफ इट्स अ ब्रांड न्यू रोटर। दिस इज़ व्हाट रिफेसिंग कैन डू टू अ रोटर। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके, सो ऐसा है कि अब चारों रोटर्स जो हैं वो कार के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं एंड इट्स क्वाइट लेट बिकॉज रोटर्स के फेसिंग के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। बिकॉज हाँ, 4 रोटर्स हैं एंड हर एक रोटर के 2 फेसेस हैं। तो आप ये लगा लीजिए एक तरह से 8 फेसेस को हमें क्वाइट अच्छे से उसको एक तरह से स्क्रब ही करना है। तो इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए इट्स क्वाइट लेट नाउ, बट चारों रोटर्स अब लग चुके हैं कार के अंदर एंड इट्स टाइम फॉर नाउ ब्लीडिंग का टाइम है भैया। बस ये लास्ट रोटर एक बार इंस्टॉल हो रहा है एंड द ब्रेक पैड्स हैव आल्सो बीन इंस्टॉल्ड बाय द वे ऑन ऑल 3 टायर्स एक्सेप्ट फॉर दिस वन। तो सिर्फ एक टायर के अंदर ब्रेक पैड्स लगने रहते हैं, बाकी सब टायर्स के अंदर ब्रेक पैड्स भी लग चुके हैं। एंड सो लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्लीडिंग का टाइम है एंड देन उसके बाद दिस कार विल ऑफिशियली बी ओवर। Alright, so finally time has arrived when we will bleed the brakes off the Abarth. So इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है वैसे। So what is happening right now, ओनर जो है वो कार के अंदर ब्रेक पैडल को दबाएंगे and the brake lines in the car, they will start to bleed out because usually they press the brake pads of the car, but because the brake pads will be disconnected, जो ब्रेक ऑयल है वो कार से गिरने लगेगा एंड उसके अंदर जितना भी डर्ट मटेरियल होता है दैट ऑल विल स्टार्ट फॉलिंग आउट, which essentially will be bleeding the brakes. This is actually a very technical thing and the owner of the car actually tells me that this is so helpful for a car that अगर आप ये रोटर फेजिंग ब्रेक पैड्स वगैरह फिर भी चेंज ना भी कराएं, सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग से ही 30 to 40% एफिशिएंसी का फ़र्क पड़ जाता है ब्रेक्स के अंदर. So that is really really amazing and I think if this is the scenario, you should get your brakes bleeded every, I would say, year when you get your car serviced. This is a great thing. Let's see how it actually happens on camera. So you can see the brake pad is actually moving because the owner is actually pressing the brake pedal right now and all the excess fluid is flowing through these lines at this point. And this is actually happening for all 4 brakes in the car. So if you move on to the other side as well, the same thing is happening on this side and for the rear as well. So all the work that we have done on the bar till date, that is taking the car on jack and then taking off all 4 wheels, taking off all 4 rotors की facing हुई है and brake pads change हुए हैं. फिलहाल कार की bleeding चल रही है. तो all of this comes under brake maintenance and this is something that everyone should get done. Not just in performance cars, like obviously braking एक बहुत important part है for a car and performance car के अंदर obviously ज़्यादा importance होती है
because the owner of this car actually takes this car on the track. She uses the performance car as the way it should be. तो इस कार में तो बहुत ज़रूरी है, but even in your car guys, you should get your brake maintenance done on time. And if you want any help regarding that, SBA is here to help you. आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्राइसिंग जाननी हो, हमें कमेंट्स में बताएं या हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल से कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. बट एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर ज़रूर आई है तो लाइक ज़रूर करें. कमेंट डाउन बिलो आपका फेवरेट पार्ट क्या था, क्या आपको कुछ नया पता चला इस वीडियो में. आई होप वो आपको पता चला हो, बिकॉज ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है. शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड्स आने वाले हैं. Right now we are working on this Maruti Gypsy, which is getting its whole body changed, which will be painted and the whole interior will be made. We are working on a vintage Citroen, जो कि एक vintage कार है, उसकी पूरी कार की renovation हो रही है. तो ऐसे बहुत सारे cool projects SBA पे आते रहते हैं. So if you're not yet subscribed to the channel, do that right now, क्योंकि this journey will be epic and we would like to have all of you with us. Thank you for watching this video and I'll see you in the next one.